Hello student, myself Professor Anjali from Rockland BBE College, Guwahati. Subject Principles of Management, subject code 105. As you all are aware about that, we have already started with our unit number 1, that is nature and scope of management. In that, we have learned the definition of management, we have learned the concept understanding of management, we have moved towards the features of management, we have moved towards the roles of managers, we have seen that management is science and art both, and even we have covered the topic that is university of management and even management as a profession. And then we have in your previous online lecture, we have covered the professionalism of management in India. Today, we are moving towards the management thoughts, that is, different schools of management thought. In that, what you are going to learn empirical approach, Frederick Taylor scientific management approach, Henry Fell administrative management approach, social system approach, decision theory approach, system approach, and contingency approach. These are the different schools of management thoughts which has described management in different point of view. So in today's lecture, we are moving towards today's in video selection. We are moving towards the management thoughts or the different schools of management thoughts. We know that in studying and analyzing the management, there are so many orientation. Okay? So it is very difficult to categorize them into some group. So in 1961, Kunz has identified the 6 schools of management, while having a conversation about the 18 schools of management. सो यहाँ पे हम जो टॉपिक कवर करने वाले दैट इज़ द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स विच हैव डिफाइंड मैनेजमेंट इन डिफरेंट परस्पेक्टिव इन अ डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट. सो द फर्स्ट जो आप कवर करने वाले हैं आज के वीडियो सेक्शन में दैट इज़ योर एम्पिरिकल अप्रोच. सो यू आर लर्निंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स. इन दैट what are the schools you will covered of management thoughts? Empirical approach, decision theory approach, ठीक है, system approach, empirical approach, decision theory approach, system approach, Frederick Taylor scientific management approach, Henry Fell administrative management approach, social system, and decision theory approach. So these are the approaches or these are the schools of a various management thoughts which describe the management, which justify the management from a different perspective point of view. Today we are going to cover the empirical approach and we are learning the first school of management thoughts, that is empirical approach. Now this approach take a management has a study of the past experience. Empirical approach is totally based that manage वो consider करता है, he take this approach takes the management as a study of past experience. It's a method which are totally based on the past manager experience and management cases. Now this approach is also known as a case approach, management experience approach, or management by custom school. According to this approach, management is considered to be a study of a manager in practice. ये अप्रोच क्या आइडेंटिफाई करता है कि मैनेजमेंट इज़ कंसिडर टू बी कि हम मैनेजर का स्टडी करते हैं बट प्रैक्टिस के थ्रू हम स्टडी करते हैं. यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुल मैनेजर और मिस्टेक्स ऑफ अ पुअर मैनेजर आर बीइंग एनालाइज प्रॉपरली. The analysis of the past experience of the successful manager or mistakes of poor manager are being analyzed properly, and after that the most efficient management technique are being applied. Now on the basis of management cases, they have a principles and have developed a means of teaching experience to other employees or the students. So this approach, empirical approach, which is totally based on the past experience and the past manager experience and the past management cases, उससे एनालाइज करके वो नए प्रिंसिपल नए टेक्निक जो है वो डेवलप करते हैं. नाउ यहाँ पे इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है. बेसिकली मैनेजमेंट वी नो दैट इज एम्पिरिकल अप्रोच के हिसाब से इट इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट मैनेजर एक्सपीरियंस. तो इट कैन बी टॉट बेस्ट बाय द केस मेथड. केस मेथड से ये आप अच्छे से समझा सकते हो. सेकेंड आपका फीचर ये हो सकता है कि मैनेजर एक्सपीरियंस विच कैन बी पास ऑन टू मैनेजर प्रैक्टिस के हिसाब से, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के हिसाब से. तो यहाँ पे हम
नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट डेवलप कर सकते हो। और आप देखोगे कोई भी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट देखोगे, इन एनी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन जो अचीव होता है ना, इट कैन बी अचीव बिटवीन योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड योर रिसर्च। उससे ही आप कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस अप्रोच। ये अप्रोच का मेन फीचर ही यही है कि दे हैव स्टडीड द लार्ज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस थियरीज एंड प्रिंसिपल्स, एंड उसके बाद वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक को डेवलप करते हैं। तो मैनेजमेंट manager in this practice in per the as per this approach make application of management technique on the basis of the study of success and failure। empirical approach मतलब मैनेजर के पास एक्सपीरियंस का सक्सेस और मैनेजर के पास एक्सपीरियंस का फेलियर, वो दोनों चीज़ को एनालाइज करके उस हिसाब से टेक्निक डेवलप करते हैं और उसी हिसाब से वो स्टडी करते हैं। दैट इज़ योर एम्पिरिकल अप्रोच। मेन एडवांटेजेस यही हो सकता है कि इट प्रोवाइड अ वैल्यूबल गाइडेंस टू करंट मैनेजर। ठीक है, करंट मैनेजर जो काम कर रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, उसको एक वैल्यूबल गाइडेंस मिल सकता है, बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस के सक्सेस और पास्ट एक्सपीरियंस के फेलियर को एनालाइज करके ही कैन टेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन बाय हैविंग अ गाइडेंस फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस। और मैनेजर को ये भी बेनिफिट हो सकता है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू वो नॉलेज गेन कर सकता है। ठीक है, एंड इवन you can gain the knowledge, you can get the benefit of techniques and methods जो एक्सपीरियंस सक्सेसफुल मैनेजर ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैनेजर कैन गेट द बेनिफिट ऑफ नॉलेज, टेक्निक एंड मेथड ऑफ एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल मैनेजर। सेकेंड, यहाँ पे जो मेन एडवांटेजेस है, इट डेवलप अ वाइडर विजन इन मैनेजर बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर ऑफ अदर बिजनेस यूनिट। दूसरे बिजनेस यूनिट का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, प्रेजेंट एक्सपीरियंस क्या है, वो हर एक चीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है। तो एज अ मैनेजर यू विल डेवलप अ वाइडर विजन इन योर मैनेजर स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट वन, यू विल मेंटेन अ स्टेटस एंड पोजीशन इन सॉल्विंग मैनेजर प्रॉब्लम। ठीक है, आपका एक स्टेटस बन सकता है, आपका एक पोजीशन बन सकता है कि मैनेजर प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आप अपने मैनेजर के पास्ट एक्सपीरियंस या सक्सेस को एनालाइज कर रहे हो, उसके फेलियर को एनालाइज कर रहे हो, तो आप उस गलती नहीं करोगे और आप जो सक्सेस मिलता है उसी टेक्निक को, उसी प्रिंसिपल को आप अप्लाई करोगे। तो इससे आपको एक स्टेटस मेंटेन हो सकता है, पोजीशन मेंटेन हो सकती है इन सॉल्विंग अ मैनेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, दिस अप्रोच इज हेल्प इन इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ मैनेजर। जब आप पास्ट एक्सपीरियंस के फेलियर को और पास्ट मैनेजर एक्सपीरियंस के सक्सेस को एनालाइज करोगे और उसके बाद आप अपनी मैनेजर स्टाइल और मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई करोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। दैट कॉन्फिडेंस विल हेल्प अस टू टेक अ वाइज डिसीजन अमंग योर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड दैट विल हेल्प यू टू हैव कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज गेन बिकॉज आप पास्ट एक्सपीरियंस को देख के आप अपना मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो दिस अप्रोच प्रोवाइड द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ एक्वायरिंग द मैनेजर स्किल दैट इज लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। ठीक है, मेन ये एडवांटेजेस, मेन बेनिफिट यही है कि ये अप्रोच प्रोवाइड, दिस अप्रोच जो ये अप्रोच है ना, वो क्या एक कन्वेंशनल वे प्रोवाइड कर सकता है बाय एक्वायरिंग, कि हम मैनेजर स्किल जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। दैट इज वी आर लर्निंग थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ अदर, दूसरे के एक्सपीरियंस को सीख के हम हमारी स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कन्वीनियंट वे हो गया। ठीक है, तो दैट विल बी योर बेनिफिट। ना लिमिटेशन क्या हो सकती है? लिमिटेशन कैन बी दैट जो आपका मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है और जो पास्ट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, देयर विल बी अ वास्ट डिफरेंट सिचुएशन। जो होगा मॉडर्न का और ट्रेडिशनल का, वो वास्ट डिफरेंस होता है। तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट स्टैटिक। आप देखोगे आज के ज़माने का मैनेजमेंट होना ना, वो स्टेबल नहीं है, इट इज़ अनस्टेबल बिकॉज देयर इज़ अ कंटिन्यूस चेंज इन योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम आर नॉट ऑलवेज यूजफुल इन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो उसके थ्रू एक लिमिटेशन हुआ कि पास्ट सोल्यूशन जो प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ कर रहे थे, वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में यूजफुल नहीं भी हो सकता। दैट विल बी अ डिसएडवांटेजेस। सेकेंड डिसएडवांटेजेस, ये मेथड जो है, ये अप्रोच जो है ना, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट सक्सेसफुल मेथड जो अप्लाई किया है इन वन बिजनेस एंटरप्राइज विल बी सक्सेसफुल इन अदर एंटरप्राइज ऑल्सो।
सपोज ए बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है और बी बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है। ए बिजनेस में प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, ज़रूर नहीं है कि बी बिजनेस में वही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दोनों बिजनेस अलग है, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, दोनों का नेचर अलग होगा, दोनों का टाइप अलग है। तो उसके कारण ये बिजनेस एंटरप्राइज में हम सक्सेसफुल मेथड अप्लाइड कर रहे हैं, वही चीज़ सक्सेसफुल होगा दूसरे बिजनेस में, वो आपका यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है। और सबको अपना स्टेटस मेंटेन, सबको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। मैं एज अ फैकल्टी मुझे को भी अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। तो आई विल फाइंड द न्यू टेक्निक, आई विल नॉट फॉलो माय अदर्स टेक्निक जो ऑलरेडी मेरे सीनियर यूज़ कर रहे हैं। आई विल ट्राई टू फाइंड द न्यू टेक्निक। दैट इज़ योर डिसएडवांटेजेस। एंड जब मैनेजर को एक ही ऑल्टरनेटिव की बात आती है ना, तो ही डज नॉट कंसिडर अदर। कंपैरिजन नहीं हो सकता है, कंपैरिजन डज नॉट बिकम पॉसिबल। आपको पता है कि यही आपको डिसीजन करना है पास एक्सपीरियंस के थ्रू, तो आप वही ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने वाले हो। तो आप दूसरे ऑल्टरनेटिव के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे, इवोल्यूशन नहीं करोगे, तो यहाँ पे कंपैरिजन कभी कभी डिफिकल्ट होगा, कभी तो पॉसिबल नहीं होगा। दैट कैन बी अ डिसएडवांटेजेस। तो आज के लेक्चर में आपने यही पढ़ा, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, उसमें एम्पिरिकल अप्रोच हमने पढ़ा। एम्पिरिकल अप्रोच आपको पता है कि जो मैनेजर के पास एक्सपीरियंस के सक्सेस और मैनेजर के पास्ट एक्सपीरियंस के फेलियर, वो दोनों को एनालाइज करके आप अपनी मैनेजमेंट, अपनी बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है। तो उसमें फीचर्स देखा कि मेन फीचर यही है कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट मैनेजर एक्सपीरियंस। कोऑर्डिनेशन अचीव होगा तो बिटवीन योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। एडवांटेजेस है कि एक वैल्यूबल गाइडेंस बेनिफिट होगा, कि एक वैल्यूबल गाइडेंस प्रोवाइड हो सकता है मैनेजर के पास एक्सपीरियंस के, सक्सेस के और फेलियर से। वाइडर विजन हो सकता है। आपको पता है कि यहाँ पे मैनेजर एक्सपीरियंस जो पहले यूज़ किया है, तो उससे आप अपना और बड़ा विजन और वाइडर वे में सोच सकते हो। ठीक है। यू कैन डेवलप अ वाइडर विजन मैनेजर, बिकॉज आपको पता है पास एंड प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो आप और अच्छे से विजन क्रिएट कर सकते हो। और यू कैन मेंटेन अ स्टेटस इन पोजिशन सॉल्विंग द मैनेजर प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पता है कि ये प्रॉब्लम में यही सोल्यूशन, यही टेक्निक यूज़ होने वाली। तो आपका एक स्टेटस मेंटेन होगा कि दिस मैनेजर इज ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दैट विल बी योर एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, मॉडर्न बिजनेस और जो पास्ट मैनेजर स्टाइल होते हैं, वो दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों का मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सेम नहीं है, चेंज हो रहा है। तो पास्ट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम जो आपने अप्लाई किया होगा, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑल्सो। और दूसरा आपने डिसएडवांटेजेस ये देखा कि जो हम सक्सेसफुल मेथड अप्लाई करें एक बिजनेस में, वही सक्सेसफुल मेथड दूसरे बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको नया टेक्निक डेवलप करनी होती है। आप अपने मैनेजर के पास्ट एक्सपीरियंस का, सक्सेस का टेक्निक आप अप्लाई नहीं करते हो। एंड लास्ट कि आपका जैसे कि एक ही ऑल्टरनेटिव नहीं, आपको कंपैरिजन जब करना होगा, तो यहाँ पे एम्पिरिकल अप्रोच में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो दिस वाज योर today's topic, that is empirical approach. Just go through the video. Thank you students for listening.